के हो ही नहीं सकते। हुआ है ना सर? कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है चाइना में। आपको इतना याद है, उसको याद नहीं है। छोटा था ना सर। ऐसा तो नहीं था ना कि आपको लड़कियों ने बोला कि आप बहुत क्यूट हो। पिछले बार जब हमने स्विमिंग की इंटरव्यू की थी तब इंग्लिश ब्रॉन्ड्स के साथ ये घूमने जाने वाले थे, गए हैं। तो आपकी जो बहू रहेगी वो ये 3 कंट्रीज में से एक होने वाली है। You won't believe I have seen golden beetroots. गोल्डन बीटरूट्स, अच्छा पेट है ना, पेट भाभी पेट का सवाल है कहते हैं ना। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं कि एक स्वादिष्ट पकवान उनके लिए भी आप बना दें, ये कहना चाह रहे हैं। उनके आपको भी वो नजर आ रहा था। वेल आज बहुत ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है हमारा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फैमिली ट्रेडिशन जब एक साथ आती हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप तो देख ही रहे हो यहाँ पे, these are handsome people over here and the beautiful Prachi over here. So I'll introduce them first. We go to the beautiful and intellectual chef over here, Prachi Madhvi. Hi. Then we have a dad, Arun Madhvi sir, accompanying us. To the left hand side, the cutest, जिनकी लास्ट एपिसोड हमारे साथ बहुत बड़ी हिट हुई थी। वी हैव द इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ कुंग फू, वी हैव तन्मय सुतार, वी हैव पारस राणा सर, ही was a past national player for Kung Fu and currently he coaches the national Indian team. And with that, the sweetest of the sweetest, Mahendra Sudhal sir. So it's all in the sweet family. They all have come over here. They have taken the precious time out. So let's go with the first question towards the beautiful Prachi. Prachi, Viva Cook Off episode. Yes sir. ये क्या था, आप उसमें कैसे गई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। विवा कुक ऑफ एक बोलते कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, जहाँ पे दे हैव प्रॉमिस्ड that they gonna provide 11 new chefs to the industry. Oh wow. So it was all for all like college students coming here from all over the India. So from all over the India we had many chefs coming around, and then we had completely a mystery box going again and again, back to back mystery box challenges. अच्छा. So we were completely unaware like what we gonna go through, what we gonna make. It was all after that we lift up the boxes, then the ingredients come into the light, and most shocking thing was many ingredients were unknown. Acha, so you didn't have any idea about the Exactly. ingredients. So that was a challenging prospect for you. So why is the name of the show named as Viva? Anything specific about it? We have a culinary sauce brand Viva that came in, so it was kind of a launch event for the Viva sauces. Okay. So this was sponsored by Viva, so we had Viva sauces, we have the spreads coming in. Alright. So it was for them, launching period for them. Okay. How was your experience working in the show? It was really a great experience because we were judged by Chef Ikhtiar Qureshi, our Master Chef Sanjeev Kapoor, Oh, wow. and also the MD, it's himself, Mr. Viraj. So it was really a great experience because it forced us to go out of the box, as we didn't know what were the ingredients, how to work with them, how do they taste, how they're gonna turn outside. So it was really a good experience. Sanjeev Kapoor, Yes, sir. big name in the industry. Exactly. I don't want to ask anything. You please say it. It was really different experience. Like it's been said that people behind cameras are kind of rude and everything, but working with him was a great experience. He was as humble as he is on the camera. All right. Yes, so like during we were cooking, he was going through, and he was giving us tips like what should be done, what's gonna turn wrong, what's gonna turn right, how it should be cooked, and everything. He was giving constant tips to us. Wow, beautiful. So you had basically an amazing experience on the show. Exactly. So it was kind of a masterclass along with the examination, we can Yes, say. definitely, because Sanjeev Kapoor is a legend. Well, cooking में ऐसे कहा जाता है beauty with intelligence. So when you went there, was that like beauty with intelligence in the show? So we were just a college students going in. So we were actually under process that time. We had not completely gone out like how is things gonna turn outside. Okay. We were all the way learning. So it was completely for all the kids.
So it was a really good experience, we can say, like how to cook, how to think about a particular ingredient, how to process it, how to plate it, and then to think like what will be the color combination, what will be the taste combination, Okay. how to work with the ingredients, like how should they be cooked. Everything was a challenge, a big challenge. Like we have the theoretical knowledge all the time in our head, but then how to apply it come to Right. light when we come into the competition. Beautiful experience you have had, Prachi. Congratulations for your Thank you so much. achievement which you have had with Sanjeev Kapoor. तो अभी आप तन्मय स्विमिंग भी कर लिया, कुंफू भी कर लिया यार, इसके अलावा और भी कुछ स्पोर्ट में आप झंडे गाड़ने वाले हो क्या 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 कर रहे हो? बहुत अचीवमेंट्स है। हाँ सर, कुंफू में तो मैं बचपन से था, हाँ। 4th स्टैंडर्ड से था, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ तभी से, और तभी से फिर अभी स्विमिंग। तो कुंफू में मतलब क्या, मतलब आप जैसे पैदा हुए आप मारना चालू कर दिया क्या लोगों डिशुम डिशुम करके? नहीं नहीं, तो कब से मारना चालू किया आपने? मैं आई गेस मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में हो गया तभी वैकेशंस में अच्छा। मेरे पापा ने मुझे कुंफू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहा। 3rd स्टैंडर्ड से आप पीट रहे हो, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी आपको कभी सर स्कूल में कि बहुत मार रहा है टीचर ने, ऐसे कभी कुछ बोला? बहुत सारे मार। बहुत ना, थोड़ा भी बच्चे लोग का कुछ झगड़ा होता था, ये डायरेक्ट मारना चालू कर रहा ये डायरेक्ट मारना चालू कर रहा था, प्रिंसिपल के पास उनको खड़े कर देते। मतलब बचपन से ही मार रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, इससे वंडरफुल। कुंफू में आप इतने आगे जा रहे हो, नेशनल लेवल पे जा चुके हो, अभी इंटरनेशनल में भी आपको अवार्ड्स मिले। हाँ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू रिसीव द इंटरनेशनल ऑनर्स? तो बहुत ही प्राउड फील हुआ, और मैं जब भी छोटा था तभी मुझे इतना मतलब मालूम नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे इतना जीत गया हूँ जी। तभी फिर इतना मुझे ये नहीं लगा था, पर अभी तो बड़े होते होते हाँ लग रहा है कि हाँ कुछ किया है मैंने। ऐसे कभी हुआ है कि कोई लड़की ने अपना ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है? झूठ मत बोल रहे, सच बोल रहे, हुआ है कभी? इतना खुला वाला क्यूट सा है तो ऐसे हो ही नहीं सकता। हुआ है ना सर? कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है चाइना में। आपको इतना याद है, उसको याद नहीं है? छोटा था ना सर, ऐसा तो नहीं था ना कि आपको लड़कियों ने बोला कि आप बहुत क्यूट हो? उसको ही खासा लिया चाइना के। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो ये हुआ है। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ अच्छा, उनके साथ में। सो सर, इंडिया में अशी कहावत आहे, एक्सपिरियन्सेस तुम्हाला पण आले असतील, इवन प्राची नोज अबाउट इट, कि गर्ल चाइल्ड अगर बोलती है कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती हूँ या मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स पहले टेंशन में आ जाते हैं ड्यू टू द कंडीशंस विच आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आपको जब प्राची ने बोला मुझे शेफ बनना है, आपका पहला रिएक्शन क्या था? हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये जाण्यासाठी लोकांना असं त्यांचा समज आहे की हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये जाण्यासाठी हे म्हणजे काय, प्रत्येकाचं असं हे असतं की त्याच्याकडे बघण्याचं एक हे असं असतं की दृष्टिकोन असं असतं की वेटर हे ते कुक म्हणजे त्याला जास्त व्हॅल्यू नाही असे लोकांची समज असते। परंतु आपल्यामध्ये काय आहे ते आपण काय दाखवू शकतो हे आम्हाला मुलीबद्दल खूप खात्री होती, गॅरंटी होती, आणि तिची आई आणि मी आम्ही ठरवलं होतं तिला जिथे जास्त हे वाटेल तिकडे आपण तिला पाठवायचं, आणि तिला वाटलं की मला हॉटेल इंडस्ट्रीला जायचं आहे, आणि तिला जेवढं होईल तेवढा सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न केला, आणि तिने तिच्या हिमतीवर बरंच काही करून दाखवलं। विवाह कुक ऑफला गेली, ती US ला गेली। आता US ला जायचं म्हणजे खूप मोठं ॲक्च्युली धैर्य पाहिजे, चिकाटी पाहिजे। मला महाराष्ट्रात कुठे जायचं तरी मला वाटतं की अरे नवीन ठिकाण कसं जाणार तिथे, कसं असणार तिथे, परंतु हे सर्व काही तिने तिथे स्वतः जाऊन दाखवलं। 3 विमानं बदलून आणि एवढ्या बाहेर जाऊन ती जाऊन आली। आम्हाला खूप प्राऊड वाटतं। मला मुलगा नसल्याचं कधीच वाईट वाटलं नाही। Lots of achievements. I think your dad has supported you a lot in this. I would like to add something over here. बोलिए। Just going ahead, हे विभाग ऑफ शेफ लाईफ सगळं नंतर आलं. When I was in school, in 7th standard, I went for softball for state level championship. Oh wow. So this was the first time my family supported me to go outside along with the team where they are not there with me. They supported me from that point of time, and I'm really thankful that they have kept their support on with me till now. Beautiful. I think this was one of the best things you have said, sir. You have got a beautiful daughter and a great dad you have. Exactly. Prachi, I think you are very lucky to have I that. am very lucky. Very lucky actually. Coming back to you, sir. बहुत आगे जा रहे हैं, आपको कैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशंस आप देख रहे हैं, हाउ डू यू फील व्हेन ही इज गोइंग इन कुंग फू अहेड आल्सो? सर, तन्मय तो पहले से छोटा था, तभी से हर गेम में वो मतलब
मेरे को इधर जाना है, खेलना है, करना है, बस उसका। अभी वो ये कुंफू में भी है, स्विमिंग भी है, फिर भी वो अपना फुटबॉल टीम का गोलकीपर है और स्टेट लेवल तक वो आदित्य ठाकरे के साथ टीम में वो खेलने के लिए गया था फिलहाल। ब्यूटीफुल यार, मतलब आपके सारे राज है ना आज हाँ। पता चल रहे हैं हमको कि ऐसा- आपने क्या क्या किया है। एज अ गोलकीपर करके वो मैन ऑफ द मैच का उसको एडिडास कंपनी का गिफ्ट वाउचर मिला था। वंडरफुल यार, वंडरफुल। आई थिंक this deserves a clap from everyone of us over here. Wonderful sir. सर आप कोच करते हो, आप हाँ जी। आपने नेशनल लेवल्स भी खेला है, हाँ जी, हाँ आप जी। अभी नेशनल कोचिंग कर रहे हो, तो हाउ डू यू सी कुंफू में अभी आगे जाते हुए इंडियन प्लेयर्स को? मेरा कहने का मतलब ये है कि हर पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जी ये सेल्फ डिफेंस है, ना कि कोई मार धाड़ की चीज़ नहीं है। लोगों को, कुछ लोगों का ऐसा फीलिंग होता है कि ये मार धाड़ की चीज़ है। मार धाड़ की चीज़ नहीं है, सेल्फ डिफेंस है। आप कभी भी किसी वक्त भी आप अगर अकेले रह रहे हैं, 4 लोगों ने आपको घेर लिया, तो आप खुद की बचाव कर सकते हैं। जैसे सेल्फ डिफेंस है, अगर हर कोई पेरेंट्स अगर बच्चे को डाले, कुछ लोग की जो सोच रहती है ना, नहीं यार मेरा बच्चा मारपीट क्यों सीखेगा, ये सोच बहुत गंदी है, मेरे हिसाब से बहुत गंदी है। मैंने लास्ट टाइम रेडियो में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तब भी मैंने बोला था ये बात। हाँ। मगर ये सोच है ना, ये निकाल दीजिए। आज के डेट में हर इंसान पिस्तौल वगैरह गन नहीं खरीद सकता। अगर अपने हाथ पैरों से अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, और उसका बेनिफिट भी काफ़ी है, बॉडी के लिए भी सेफ्टी है। आप तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी वगैरह आपके जहन में आएगी नहीं, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, ये कोई बीमारी, आप हमेशा हर चीज़ से दूर रहेंगे, हमेशा फिट रहेंगे। फिट रहेंगे एकदम एकदम। सर कराटे और कुंफू में कुछ फर्क है? हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा 2 लाइन में हमें बता दीजिए। कुंफू इज़ फादर गेम, अच्छा, कराटे इज सन। okay, so it's like a father and son relationship. Yes. You have been to nationals also, हाँ। national levels पे, so तब आपको कैसे रहा? आप भी खेल चुके हैं। मैं जब छोटा था, जस्ट मेरे मामा थे, जस्ट मैं ब्रूसली की मूवी वगैरह देखता था छोटे में, अरे वाह। तो मेरे मामा, मैंने बोल दिया, मामा बोले अरे ब्रूसली ने 1-2 उंगली मारा, पेट फाड़ दिया। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, बोला मेरे को दिखाया तो मेरे को लगा अरे हाँ रियल, मेरे को भी करना है। जस्ट मेरे मुंह से निकल गया, तो दूसरे दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। जो मैंने मार खाया, जो मैंने ट्रेनिंग किया, कम से कम मेरे को 1.5 से 2 घंटा रनिंग, उसके बाद 3 से 4 घंटा ट्रेनिंग, ऐसा होता था। आज तो हम लोग, मैं खुद अभी क्लासेस लेता हूँ, मैं कोच हूँ, मैक्सिमम 1.5 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस लेता हूँ। बच्चे बोलते हैं अरे बहुत थक गए, क्योंकि आज की जो वातावरण में जो खाने पीने की चीज़ है वो बहुत वीक हो गई है। जो जैसे बाहर के बर्गर, चिप्स, वड़ा पाव वगैरह जो जस्ट ये ऐसे खाते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है। आप जितना घर का तंदुरुस्त खाना, घर में जो भी मिल रहा है, दाल रोटी चावल भाजी वगैरह, ग्रीन भाजी वगैरह जितना भी खा सकते हैं, मिल्क घी वगैरह, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। बाहर की चीज़ें से अवॉइड कीजिए। So I think message he said again, if you want to go ahead and kung fu, keep yourself fit, eat proper, junk food avoid करो. तुम्ही है ना ॲज अ कोच पाहिल्यात, कोच सर का पाहिल्यात, इव्हॉल्व करताना कसे वाटले तुम्हाला हे? विथ तन्मय. सर जेव्हा मी सर फर्स्ट टाइम मैंने जब इनके क्लास में तन्मय को ज्वाइन किया, मतलब एकदम गुरु और शिष्य का रिलेशन जैसा रहता है। उनको कुछ सिखाना है बच्चों को, बच्चों में से कुछ निकालना है, यही इनका टेंडेंसी रहता था। और एकदम स्ट्रिक्टली ये टाइम पे आना है, इतना घंटा प्रैक्टिस करना है, वार्म अप करना है, ये सब एकदम स्ट्रिक्टली एक प्रॉपर रेजिम मेंटेन किया था उन्होंने. So beautiful message conveyed again by sir, and I think he has got proud parents and a proud coach. तन्मय, आपने आज तक कितने गोल्ड या जितने भी अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेशनली पे, आपको आप कहाँ जा चुके हैं वो ज़रा बताइए हमें. सर मुझे तो फर्स्ट नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2010 और 11 आई गेस जी. तभी उसके बाद से फिर मुझे और मतलब कुंफू में मेरी बहुत इच्छा बढ़ गई। तो वैसे फिर नेक्स्ट ईयर मैं सेम यूपी में गया था, तभी फिर मुझे ब्रॉन्ज के बदले गोल्ड मिला। फिर ऐसे करते करते फिर मुझे सर ने इंटरनेशनल के लिए गाइड किया, मुझे वैसे ट्रेनिंग दी जी. फिर 2012 में मैं फर्स्ट टाइम गया था फिलीपींस इंटरनेशनल, तभी फर्स्ट टाइम ही मुझे गोल्ड मेडल मिला था. वाओ, तो ब्यूटीफुल अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस तन्मय.
दूसरे एथलीट्स बरोबर तू आता केलंस कुंफू इज नॉट एन इजी गेम हाँ सो जैसे चाइना का कोई आता है हाँ तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ आप लड़े हो हाँ। तो हर एक के साथ एक्सपीरियंस एक शॉर्ट में हमें बताइए कैसा रहा था। तो सबसे टफ तो चाइनीज़ प्लेयर्स रहते हैं। अच्छा चाइनीज तो बहुत- हमेशा टफ रहता है। हाँ, बहुत फास्ट रहते हैं उन लोग और स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं वैसे। जी तो मुझे जब मैं इंटरनेशनल के लिए सेकंड टाइम गया था तभी मेरी लास्ट फाइट जो थी वो चाइनीज़ प्लेयर के साथ थी, तभी वो फाइट में मैं हार गया था, तभी सिल्वर मुझे मिला था। चलो नो प्रॉब्लम सिल्वर यू वन अ मेडल दैट्स Yeah, yeah. more than important वंडरफुल अचीवमेंट्स अगेन स्विमिंग प्लस कुंफू आई थिंक ही इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। अगली बार जब आएंगे तो दूसरा स्पोर्ट में भी ये अपने अचीवमेंट्स लाने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर थैंक यू दैट। थैंक यू। प्राची कमिंग टू यू 7th रैंक, क्या राज है ये 7th रैंक? So I was in ITM and then my degree was BA in Hospitality and Tourism Management that was affiliated by Queen Margaret University in Scotland. स्कॉटलैंड Yes. अच्छा यू वेंट टू स्कॉटलैंड No, not really. ओके सो यू हैड वर्क विद द Yes, we worked with the Scotland people, so we had modules instead of the regular subjects. So being an affiliated degree, so we were working on the subjects and also Wow. on the modules. Oh, beautiful. So there I scored a 7th rank and I passed with distinction with my degree. क्या कहूँ फैमिली ऑफ टैलेंटेड पीपल आर सराउंडेड बाय मी ओवर हियर। अब ये समझ में आ रहा है मैंने कुछ नहीं किया मुझे भी अब इनसे सीखना पड़ेगा ताकि मैं भी ऐसे यू नो अवार्ड्स और रिकग्निशंस लाऊं इसके आगे। यूएसए में आपने काम किया 1 साल तक, Yes, sir. कैसे कंडीशंस थे वहाँ पे? After completing my degree, so I went for the J1 visa. So J1 visa is a cultural visitors exchange program. So it's intended to be like we go there, we work with those people, we learn their culture, and then we exchange our cultures with them. So while working there, it was a really great experience because when we were working, it was not just the American peoples with the Indians, but we had the Philippines, we had the Mexicans, we had the Italians, and also we had Africans working with us. Wow. Yes, so it was a really mixed bag working. It was really great experience because working there, learning the American cuisine along with the Italian, it was a great experience because we came to know different varieties of carrots, potatoes, which we don't see here. You won't believe, I have seen golden beetroots. Golden beetroots. Golden beetroots. अच्छा, something there out of the box it was. Potatoes, we had red potatoes, yellow potatoes, purple potatoes, pink potatoes. मेरे एक्सप्रेशन से आप समझ गए मुझे क्या कहना है, आप बढ़ते रहिए आगे। In carrots, we had blue carrots, purple carrots, black carrots, white carrots, and red carrots. So we had really a great bag of ingredients open for us. We were working with those ingredients. And being there on training, we were never treated as a trainees, but we were actually working on the line, putting forward the orders for the guests. पेट है ना, पेट पापी पेट का सवाल है कहते हैं ना। ये ब्लू पर्पल क्या वाइट रेडिश क्या कौन से कलर्स आपने बोले मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत भूख लग रही है अभी। सबको भूख लग रही है कि नहीं? हमारे दास को भी भूख लग रही है। सो अभी मतलब हमें कुछ खाना है। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपिरियन्स फॉर यू प्राची। लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स। गणेश नाईक सत्कार अजूनही खूप सत्कार झालेले आहेत तुझे. थोडा शॉर्ट आम्हाला सांग छोटे मोठे सत्कार. विभाग ऑफ नंतर जेव्हा माझी डिग्री वगैरे झाली लोकांना समजायला लागलं तो आगरी कोळ्यांमध्ये पहिली मुलगी जी शेफ लेवलला आहे आणि इतक्या पुढे जाते हे बघून मग गणेश नाईक सरांनी माझा सत्कार केला. एन डी डावरकर आहेत त्यांनी माझा सत्कार केला होता. त्यानंतर कल्याणमध्ये आगरी कोळी उत्कर्ष सेवा संघटना आहे जी सांगायला आवडेल की ती पक्षाला मानत नाही, सर्वपक्षीय आहे. त्या लोकांनी देखील माझा सत्कार केला होता या एका गोष्टीसाठी. प्राउड ऑफ यू प्राची फॉर इट सर। डेफिनेटली बहुत बढ़िया डॉटर मिली आपको। आई थिंक यू आर ब्लेस्ड टू हैव हर। कम बैक टू यू, आप चाइना भी गए थे? हाँ क्यों गए थे? सेम कुंफू। कुंफू के लिए वहाँ पे हाँ। भी अवार्ड जीते? हाँ वहाँ पे सिल्वर मेडल वहाँ पे भी 2013 silver। में जीता। वाह सर, पिछले बार जब हमने स्विमिंग की इंटरव्यू की थी तब इंग्लिश ब्लॉन्ड्स के साथ ये घूमने जाने वाले थे। अब ये फिलीपींस और चाइना में जाने वाले हैं। तो जाके आए। हाँ मतलब गए हैं। हाँ। तो आपकी जो बहू रहेगी हाँ। वो ये 3 कंट्रीज में से एक होने वाली है। सो तन्मय, लेट अस नो व्हाट इज फ्यूचर प्लान्स. तो अभी तो कुंफू में और आगे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं और कुंफू अभी जस्ट लाइक रिकग्नाइज हुआ है, तो और भी बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और
और बस इंटरनेशनली बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन से लाने वाले आगे. प्राउड ऑफ यू सर. बहुत बढ़िया you, आपके sir. लिए आई थिंक स्टूडेंट मिला, बहुत बढ़िया सन मिला आपको एंड वाइस वर्सा. फ्यूचर प्लान्स? Actually, I'm into fusion cuisine, so I Arey already yaar. had a small snacks corner, so my USP was Thali Pit Burger. So it's kind of a fusion of Maharashtrian and American cuisine. So I would like to restart it once again ओके on a bigger note, like QSR. ओके. Yes, and then I want to get into the events, also planning for an events company very soon. So you are buying for an events company also. Please take my number down. Events company है, हम आपके साथ डेफिनेटली कांटेक्ट में रहना चाहेंगे. इसके बाद में हाँ पेट भरने आया है. आई थिंक वी नीड टू गो होम फ्रॉम नाउ, क्योंकि प्राची हमारे साथ चल रही है. खाना पकाने के लिए हम बहुत सारे इटालियन, मैक्सिकन, फ्रांस, चाइनीज, इटली, कौन से पता नहीं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज की क्यूजिन हम खाने वाले हैं. सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन ऑफ यू. Thank you, sir. Thank you. बहुत प्राउड पेरेंट. आपका फीडबैक कैसा था आज की शो? मेरा फीडबैक ऐसा है कि कोई भी आज मैं कुंफू प्लेयर हूँ, जस्ट वो एक कुक्स हैं, तो जैसे उनको खाना बनाना शौक है, ऐसे मेरे को भी खाना बनाना शौक है. मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को आज एक ऐसा कुंफू के उसमें एक अलग चीज़ देखने को, ज्वाइंट होने को लिए मिली, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. दिल से मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ. आगे बढ़े और आगे बढ़े, आसमान की बुलंदियों को छुए. इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं कि एक स्वादिष्ट पकवान उनके लिए भी आप बना रहे हैं. ये कहना चाह रहे हैं. उनके आंखों में मैं नजर आ रहा था मुझे कि भूख लगी, खाना है अभी उनको. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. सर फीडबैक. सर खूब बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं. हमने नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे इधर इनको इतनी पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन आपके सोर्स से हमारे बच्चे इधर ही नवी मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर, इंडिया के बाहर जाके उनकी तारीफ होगी. उनके जो भी कुछ उनके अंदर जो भी कुछ है वो सब बाहर पता चलेगा. बहुत अच्छा लगा आपके इस शो में आके. थैंक यू सर. मुझे अब ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं भी अभी बच्चा हूँ छोटा सा, दोनों की तारीफ हो रही, मेरी भी थोड़ी तारीफ हो रही. शो के एंड में थोड़ा अच्छा लगा एंड बहुत वंडरफुल. एज आई सेड, कीप वॉचिंग फॉर द फूड, कीप वॉचिंग फॉर द ब्लॉन्ड्स. हम मिलते रहेंगे अगले इंटरव्यू में. स्टे ट्यून. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. Hello, my name is Shariyu Sutar and I'm a national level Kung Fu player. I have represented Maharashtra at national level and I'm a 6-time gold medalist. Currently, I'm pursuing my engineering in information technology. So my brother joined Kung Fu before me and was really good at it, and he used to inspire me to participate too, and my father and mother encouraged me to join this art, and this is how I really started the training sessions. Well, my father is the one who encouraged me and my brother to join this art. There were some Kung Fu classes going on in our neighborhood, so we explored them and tried to, start with Kung Fu there first. And my coach is Mr. Paras Rana. He is a national level coach and very strict with our routines, and I think his strictness is the one what we believed took us ahead in this sport. My first match was a national level tournament. It was held in Lucknow, Uttar Pradesh. It was just months after I joined Kung Fu training. I have played various levels, district, state and national levels. I have won total of 6 gold medals and 1 bronze medals. Well, Kung Fu is a martial art. There are various fighting styles like Tao Lu, Wushu, and Kung Fu is one of the martial art originated in China. It is believed, there is this legend saying that
the one who originated Kung Fu was a Buddhist monk from India. His name was Bodhidharma. So he tried to teach Indian people this art, but they rejected him. So he went to meet the emperor of China, and there he saw the people practicing Buddhism there were weak physically and mentally. So he taught them this art, and from there it flourished all over China. And when we talk about Indian scenario, it is not much famous here because we see it as a extracurricular activity, but it is not much famous like cricket or football is. And really we want this art to get famous, and more and more people should know about this art. The toughest match, which I believe was my first match, I was just a beginner then, and there was this girl from Manipur. She was senior to me, very skilled in this art, and yes, it was fun having fight with her. But yeah, this one I believe was the toughest opponent for me overall. In a tournament in the same age and weight category, we have 3 fights, and each fight consists of 3 rounds. If we win the first fight, we are eligible for the bronze medal. If we win 2 fights, we are a silver medalist, and if we win all the 3 fights, we are gold medalist. So each round consists of 2 to 3 minutes, and the decision is taken after all 3 rounds. The marks are summed up and the winner is declared. So of course, in a fight, when you're punching your opponent, the opponent also punches you. So there were many instances where our gums were bleeding or the ankle got twisted. But this is a fight, right? If you're punching your opponent, the opponent is attacking you. So you must find techniques where you get less hurt by your opponents. Well, I think every sports player, be it any sport, wants to play internationally. He or she wants to represent his nation at a global event. So yes, I look forward to playing internationally when I'm well trained. I really want to teach young girls this art, and whoever is willing to learn this art for their basic self-defense, for protecting themselves, I will be very honored to teach them.